بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ مستقل کام نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے اور اسی لیے میں اس لمبی فلائٹ پر صرف آنکھیں موند کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ جس ایئر کرافٹ میں میں سفر کر رہی تھی وہ ایک بہت بڑی ایئر کمپنی کا کشادہ جہاز تھا اور اس کی سیٹیں بھی آرام دہ تھیں۔ جہاز کے بیچ میں چار اور کھڑکی کی طرف دو سیٹیں تھیں۔ میں کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی۔ مسافروں کی آمد جاری تھی۔ جہاز کی سبھی سیٹیں تقریباً بھر چکی تھی۔ یہ جہاز بینکاک سے سری لنکا کے لیے روانہ ہو رہا تھا، جہاں سے آگے مجھے پاکستان کے لیے دوسرا جہاز بدلنا تھا۔ اس پوری فلائٹ میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کو وہاں سے آگے جانا تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے ہیلو کہا۔ اس سے پہلے میں اس کو دیکھتی یا جواب دیتی وہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر غیر ارادی طور پر بڑی سرد مہری سے جواب دیا۔ وہ ایک تھائی لڑکی تھی۔ میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے تھائی لینڈ آئی تھی۔ تھائی لینڈ کے بارے میں کہانیاں تو میں پہلے ہی سن چکی تھی اور اب یہاں کچھ دنوں کے قیام نے بھی مجھے یہ بات باور کروا دی تھی کہ بینکاک کی معیشت عورتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ میں ایک مسلمان باپردہ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی جس کے لیے بینکاک جیسے شہر میں اکیلے آنا اور اتنے دن قیام کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہاں کا ماحول اور کلچر بھی ہماری تہذیب سے جدا تھا، مگر جس سیمینار میں مجھے دعوت دی گئی تھی وہ آگے میرے مستقبل کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا، اور پھر میری رہائش سے لے کر مجھے واپس جہاز تک پہنچانا بھی میرے میزبان ہی کی ذمہ داری تھی۔ سارے وسائل میسر تھے، سو گھر والوں کو منانا آسان ہو گیا۔ سیمینار ختم ہونے کے بعد میزبانوں نے ہمیں ایک پورا دن بینکاک کی سیر بھی کروائی۔ بس اسی بہانے مجھے شہر دیکھنے کا موقع مل گیا اور پھر وہ ساری باتیں جو آج تک صرف سنی تھیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ پورے شہر میں عورتوں اور لڑکیوں کا راج تھا۔ ہر کاروبار عورت کے ہاتھوں میں تھا، یہاں تک کہ دکانوں کی سیلز گرل سے لے کر ہوٹل کے کاؤنٹرز پر بھی خوبصورت نازک سی کم عمر لڑکیاں ہی نظر آئیں۔ مرد زیادہ تر رکشہ، بسیں، ٹیکسی وغیرہ چلانے اور دوسرے محنت طلب کاموں میں مصروف نظر آئے۔ وہاں مجھے کوئی بچہ کام کرتے ہوئے دکھائی نہ دیا۔ شام کو 5 بجے کے بعد ہی میں نے اسکول کے کپڑوں میں بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ دیکھا تھا، سو یہ بات یقینی تھی کہ یہاں ہر بچہ تعلیم حاصل کرنے کا پابند تھا۔ چائلڈ لیبر کا یہاں کوئی تصور دکھائی نہ دیتا تھا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک شہر کی ہر شاہراہ، ہر گلی، ہر کونے کو بہت خوبصورتی اور توجہ سے سجایا اور سنوارا گیا تھا، کیونکہ یہاں سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد سارا سال موجود رہتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غیر ملکی سیاحوں کی یہاں آمد تھائی لینڈ کی معیشت کو بہت بڑا سہارا فراہم کرتی ہے۔ ہر چیز میں صفائی ستھرائی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ساری خوبیاں ایک طرف، مگر میں خود کو اپنے خاندانی اور اعلیٰ حسب نظر کی وجہ سے تھائی خواتین کی نسبت بلند سمجھتی تھی، سو اپنے برابر بیٹھنے والی تھائی لڑکی کو میں نے بری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ غرور جو مجھے اپنی ذات پر تھا اس نے مجھے تھائی لڑکی سے اچانک صدیوں کی دوری پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے اپنی برابر کا انسان بھی تصور کرنا شاید مجھے ذہنی طور پر منظور نہ تھا، مگر حالات کی مجبوری کے یہ سفر مجھے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے طے کرنا تھا۔ پائلٹ نے جہاز میں مسافروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے جہاز کی روانگی کا اعلان کیا اور سب مسافر اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ ایک مخصوص بلندی پر جا کر جہاز سیدھا ہوا اور پھر جہاز میں ہلکی باتوں اور فضائی میزبانوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ بعد کسی نے مجھے ایکسکیوز می کہتے ہوئے ہلکے سے چھوا۔ میں نے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو دھیرے سے کھولا۔ تھائی لڑکی مسکرائی اور سامنے کھڑی ہوئی ایئر ہوسٹس کی طرف اشارہ کیا جو مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی پسند بتائی اور پانی مانگا۔ پانی پی کر میں نے کھانے کی طرف دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کافی دیر سے کچھ بھی نہیں کھایا، سو میں مزیدار کھانے سے انصاف کرنے میں مگن ہو گئی۔ میں اپنے برابر والی لڑکی کو ایک دم بھول چکی تھی۔ اس نے پوچھا، آر یو پاکستانی؟ میں نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا یس۔
शायद उसने मेरे लिबास से अंदाजा लगाया था। मुझे हैरत हुई कि ये लिबास तो इंडियन और बांग्लादेशी लड़कियां भी पहनती हैं। शायद मेरा साफ रंग और ऊंची कदोकामत से उसने अंदाजा लगा लिया था। अब की बार वो टूटी फूटी उर्दू में बोली, आप पाकिस्तान जा रही हैं? मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा और हैरत से पूछा, आपको उर्दू आती है? वो हंसते हुए बोली, जी मैं 5 सालों से पाकिस्तान में जॉब कर रही हूं, बस कुछ सीख ही ली है। मैंने अब गौर से उसकी जानिब देखा। आप पाकिस्तान में जॉब करती हैं? मगर क्या जॉब करती हैं आप? उसकी वज़ाक़ता इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो कोई खास पढ़ी लिखी खातून नहीं थी और ना ही उसके जिस्म पर ऐसा लिबास था जो उसकी अमारत को जाहिर करता। तो फिर वो पाकिस्तान में किस किस्म की नौकरी कर रही थी? मेरे चेहरे के तासुरात से उसने मेरी उलझन का पता लगा लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं कराची के एक बहुत बड़े मशहूर मसाज पार्लर में काम करती हूँ। शायद आपको ये बात मालूम होगी कि थाई मसाज दुनिया भर में मशहूर है और इससे कई तरह की बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, जो रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके जोड़ों के दर्द तक को न सिर्फ दूर करता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तकलीफ से मुकम्मल निजात भी दिलाता है। उसने एक ही सांस में अपना मुकम्मल तारुफ मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने हकारत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ओहो, तो आप एक मसाज करने वाली खातून हैं। मेरे लबो लहजा के तंज को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक रंग सा आकर गुजर गया। जी, उसने धीमे से लहजे में जवाब दिया। दिल ही दिल में मैं अपने इस रवैये पर शर्मिंदगी सी महसूस कर रही थी। वो बड़े तहम्मुल से मेरी बात बर्दाश्त करते हुए दोबारा मुस्कुराई और बोली, आपको हमारा मुल्क कैसा लगा? मैं जो पहले ही इसके काम के बारे में जानकर दिल ही दिल में वो सब बातें याद कर रही थी जो इस किस्म की खातून के बारे में मशहूर थीं, और अब जबकि उसके शहर में घूम भी चुकी थी और इस बात से आगाह भी हो गई थी कि इनकी पूरी मईशत पर खातून का राज था, जो बगैर किसी शर्मो झिझक के वो सारे ही काम कर रही थी जिनका पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में तसव्वुर भी नापायद था। फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैं बोली, हाँ, मैंने बस एक ही दिन आपके शहर बैंकॉक की सैर की है, मगर मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको बहुत साफ सुथरा और सजा संवार कर रखा है। मुझे कहीं भी किसी भी किस्म की बदनज़मी नजर नहीं आई। सड़कें साफ कुशादा, स्ट्रीट लाइट रोशन, शहर का माहौल पुरसुकून, चाइल्ड लेबर सिफर। मगर हाँ, चूंकि बैंकॉक एक जमाने में जिस्म फरोशी के हवाले से बदनाम रहा है, जिसकी झलक आप लोग की नाइट लाइफ अब भी साफ नजर आती है। शायद आपकी इकॉनमी का दारोमदार भी सियाहत से ज्यादा जिस्म फरोशी पर है। मेरे अल्फाज सादा जरूर थे, मगर उनकी काट उनके चेहरे पर पड़ी जा सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और मेरी जानिब देखते हुए बोली, जी मैं जानती हूं कि थाई खातून अपनी इस बात के लिए दुनिया भर में बदनाम है, मगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए गलत फहमी का शिकार हैं। मैंने हैरत से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मतलब? वो मेरे सवाल पर मुस्कुराई और एतमाद से बोली, हम बदनाम जरूर हैं, मगर हमें नाज है कि हम वो कौम हैं जिनकी माओं, बहनों और बेटियों ने अपने मुल्क कौम को गुर्बत, अफलास, नाखानदगी और कम मुल्की वसाइल जैसी लातादाद खामियों से दूर करने और अपने मुल्क को संवारने, अपने आने वाली नस्लों को एक मजबूत और मुस्तहकम कौम बनाने और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मगर ये बात पूरी दुनिया जानती है और अब मान भी गई है। हमारा असल काम मसाज करके लोगों की तकालीफ को कम करना है और उन्हें देसी तरीका इलाज से ठीक करना है। आज दुनिया भर में थाई मसाज के जरिए लोग अपना इलाज करवाते हैं और हमारे स्पेशल जड़ी बूटियों से बने मुख्तलिफ तेलों की दुनिया भर में मांग बढ़ती चली जा रही है। हमने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने मुल्क कौम को संवारा है, बल्कि दुनिया पर यह बात भी वाज़ेह कर दी है कि हम एक मेहनती और जफाकश कौम हैं। हमने अपनी सनतों को तरक्की दी और सियाहत को फरोग दिया, और अब हमें इत्मीनान है कि हमने अपने मुस्तकबिल को महफूज कर लिया है। हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ भी किया, हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है। और अब उम्मीद है कि हमारा मुल्क थाईलैंड भी बहुत जल्द तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर अकल की आंखों से परखोगी तो जान पाओगी कि उस वक्त जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारी औरतों ने दिन रात मसाज से इलाज के पुराने तरीकों को कैसे नए अंदाज में ढाला, उनकी रात दिन की कुर्बानियों ने हमारी पूरी कौम को इस दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीने का हुनर सिखाया है। आपके लिए वो तवाइफें हो सकती हैं, मगर हमारे लिए वो अजीम खातून हैं।
शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यानी तुम्हारा मतलब है कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनकी औरतें अपने आप को बेच दें। उसने मलामत भरी नजरों से मुझे देखा और बोली, गलत, बिल्कुल गलत। माफ कीजिएगा, आपकी सोच बहुत मामूली और सतही है। आप नहीं जानती कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां औरतों की जिस्म फरोशी की गुंजाइश न हो। मगर कौमों की तरक्की का राज औरतों की जिस्म फरोशी पर नहीं, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने लोगों से मोहब्बत और सबसे ज्यादा अपने आप से मुखलिस होने और मोहब्बत करने से है। क्योंकि जिस कौम में ये तीनों सिफात होंगी वही मुल्क तरक्की करेगा। एक लंबा सांस लेने के बाद फिर से वो बोली, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। मैं जो गुमसुम बैठी उसकी बातों पर गौर कर रही थी, चौंक गई कि जिसको मैं जाहिल और आम सी औरत समझ रही थी उसने मुझे और मेरी सोच को एक नया जाविया दिया है। उसके लबो लहजे ने मुझे अंदर तक सहमा सहमा सा कर दिया था। मैंने आहिस्ता से सर के इशारे से उसको अपनी बात कहने की इजाजत दी। वो धीरे धीरे बोली, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा कि आपके मुल्क में लाताद वसाइल होने के बावजूद आपके मुल्क का हर शहरी बैनुल अक़वामी कर्जों के बोझ तले क्यों दबा हुआ है। मुल्क में जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी अमन व अमान क्यों नहीं। औरतों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ही उनको जिंदा जलाकर क्यों मार डालते हैं। एक ही मजहब के पैरोकार होने के बावजूद आप लोगों की इबादत गाहें क्यों महफूज नहीं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी आपका किसान भूख और गुर्बत से निचली सतह पर क्यों है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी और कुदरती मनाजर से माला माल होने के बावजूद सियाह आपके मुल्क का रुख क्यों नहीं करते। ये तो बस चंद छोटी मोटी बातें हैं। अगर गौर करेंगी तो अंदाजा होगा कि आपके मुल्क के नाम देहात इज्जतदार सियासी रहनुमाओं, मजहबी पेशवाओं, अफसरशाही और तमाम साहिब इख्तियार ने अवाम को कौमियतों, सूबों, जुबानों और फिरकों में बांट दिया है और आपकी पूरी कौम और मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने की बजाय बेच खाया है और खा रहे हैं। तवाइफ के बारे में अमूमी तौर पर यही राय पाई जाती है कि वो अपनी अदाओं से, नखरों से और जिस्मानी नशेबो फराज से तमाशबीन को लूटती है। इसी तारीफ के पेशे मंजर में अगर आप गौर करें तो आपको इस बात का एहसास होगा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती, जहाज के पहियों ने जमीन को छुआ और एक झटका सा महसूस हुआ। मगर जहाज का ये झटका उस लड़की की बातों के झटकों के आगे मुझे मामूली सा महसूस हुआ। जहाज के रुकते ही एक अफरा तफरी सी मच गई। वो भी खड़ी हुई और अपना सामान निकालने लगी। इससे पहले वो बाहर की जानिब बढ़ती मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। मेरा सवाल न समझ पाई। मैंने हल्के से कहा, अपना जुमला मुकम्मल करो। वो सोचते हुए बोली, कौन सा जुमला। मैंने डरते डरते कहा, असली के आगे तुम क्या कहना चाहती थी। वो तंदिया अंदाज में हंसी अपने कांधों पर बैग लटकाया और मुड़कर बोली, असली तवाइफ कौन है।